नेक्स्ट जो है आपका स्लाइडिंग माइक्रोट्यूबुल मॉडल। पहला मॉडल तो कर लिया था, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल, स्लाइडिंग माइक्रोट्यूबुल। In dynamic equilibrium model, we have seen that because of polymerization of intergenol fibers and depolymerization of chromosomal fibers, chromosome move towards skin. But the question is, from where initial mechanical force come? Initial mechanical force is required. Without this, polymerization and depolymerization cannot work. So experiment has proven that between continuous fiber there is a dynein protein. Dynein protein होती है, protein. They sliding past each other. They sliding past each other, which generates mechanical force. Because of that initial mechanical force, polymerization and depolymerization actually work. समझा ना? जब दो कंटिन्यूअस फाइबर्स के बीच में डायनिन प्रोटीन होती है तो वो स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर करता है, इधर जाता है इधर आता है, जैसे मस्कुलर मूवमेंट होता है ना, एक्टिन मायोसिन, ऐसे होती है, उससे एक फोर्स जनरेट होती है. दैट फोर्स एक्चुअली हेल्प्स पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन. ठीक है, ये डायग्राम नहीं, और जहां पे होता है, जैसे यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रही है, वो तो हो ही रहा है. दिस मॉडल डजंट से पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन आर नॉट ऑकरिंग, वो तो होता ही है, लेकिन फॉर देम टू वर्क one initial mechanical force is required. That initial mechanical force comes from sliding past of dynein protein, which are present between two continuous fibers. नहीं तो continuous fibers की जरूरत क्या है? अब देखो, क्रोमोसोमल फाइबर्स तो खींच रहा है, इंटरजेनल फाइबर्स पुश कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस फाइबर्स की क्या जरूरत है? तो जरूरत तो होगा ना, तो जरूरत है इनिशियल मैकेनिकल फोर्स को जनरेट करने. ठीक है, नहीं तो अब अगर इन दोनों से ही काम हो जाता था तो इनकी तो जरूरत ही नहीं था. लेकिन वो देखो है proposed by मैकइंटोश 1969. Proposed by मैकइंटोश 1969, similar to beating of cilia and flagella. Similar to beating of cilia and flagella. ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, सब में है. ये नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. The previous mechanism is difficult to explain. The generation of mechanical forces by the simple mechanism. The previous mechanism is difficult to explain. The generation of mechanical forces by the simple mechanism of polymerization and depolymerization. अच्छा, इसको यहाँ पे डायनिन. The present mechanism induce an element of sliding of the microtubule. Sliding of the microtubule of the spindle past each other. Induce an element of
sliding of the microtubule of the spindle past each other, aided by the involvement of dynein protein on the adjoining microtubule. Dynein protein on the adjoining microtubule. इसमें एटीपी की भी जरूरत होती है। जो मैंने बताया था ना, जो इक्वेटर से पोल तक जाने के लिए 30 एटीपी की जरूरत होती है, इसी के लिए एटीपी की जरूरत होती है। द डाइनिन कैन बाइंड एटीपी टू रिलीज एनर्जी for the chromosome movement. The dynein can bind ATP to release energy for the chromosome movement due to mechanical force, but it is aided by the polymerization and depolymerization for the lengthening and shortening of the spindle fiber respectively. देखो, एक किताबी लैंग्वेज है, अगर आप अपनी लैंग्वेज से लिखोगे तो आसान भी रहेगा, कम भी हो, ऐसे लिख सकता। फॉर पॉलीमराइजेशन एंड डिपॉलीमराइजेशन टू वर्क, इनिशियल मैकेनिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड, which is generated by sliding past of dynein protein which present between two adjoining continuous fibers. It is an energy consuming process in which ATP is involved. तो अपनी लैंग्वेज में लिखा तो छोटा होता है हमेशा। एविडेंस क्या दिया, देखो एविडेंस, द डाइनिन प्रोटीन has been localized. The dynein protein has been localized in the spindle fiber with the help of immunoelectron microscopy. The dynein protein has been localized in the spindle fiber with the help of immunoelectron microscopy. The dynein protein दिखा तो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू मिला है, जो है डाइनिन प्रोटीन है। द डाइनिन प्रोटीन हैज बीन लोकलाइज्ड इन द स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप है, उसमें दिखा डाइनिन प्रोटीन है। अब लिखना स्लाइडिंग माइक्रोफिलामेंट मॉडल। This model says that initial mechanical force is not only generated by sliding past of dynein protein, it is also generated by actin and myosin present between two adjoining continuous fibers at pole as well as at the place of kinetochore। यहाँ पे यही डायग्राम बनाना है, गंदा हो गया। मतलब डाइनिन भी स्लाइडिंग पास्ट कर रहा है, एक्टिन मायोसिन भी स्लाइडिंग पास्ट कर रहा है, दोनों से एनर्जी मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है दिस मॉडल हैज बीन प्रूवन रॉन्ग, ये भी सही प्रूव हुआ, एक्टिन मायोसिन भी सही प्रूव हुआ। नहीं, सबसे मोटी वाली बुक काला कवर है, लेकिन proposed by Fuller. In 1974. This mechanism is based upon sliding of microfilament made up of actin and myosin and associated closely with the spindle fiber at kinetochore and pole। ठीक है, देखा, the actin myosin system of the microfilament
can take up the ATP to utilize its chemical energy for the sliding past each other, generating sufficient mechanical force for the movement of chromosome towards the pole during anaphase. ठीक है. Now evidence, not evidence. Next paragraph लिखना. But this model also required the polymerization and depolymerization of the spindle fiber for lengthening and shortening respectively. Evidence. Actin and myosin has been localized in the spindle by immunoelectron microscope. इसका मतलब है polymerization, depolymerization pulls and pushes the chromosome towards poles, but a mechanical force is needed, which comes from both sliding of dynein molecule as well as sliding past of actin and myosin filament. दोनों से ही होती, क्योंकि ऐसा नहीं है जो डाइनिन दिखा है एक्टिन मायोसिन देखा नहीं, तो डाइनिन भी प्रेजेंट है, एक्टिन मायोसिन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. तो सेल डिवीजन में एक टॉपिक अभी रह गया है, इसके रेप्लिकेशन की बात करेंगे, जो सेल साइकिल की रेगुलेशन. सेल साइकिल का पार्ट रेप्लिकेशन भी तो होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन. जब व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन तो डीएनए रेगुलेशन भी तो आ जाता. नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार में एक्सपेक्ट करते हैं? 2.5-3 पेज. 200 क्रॉस नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो छूटेगा. तो डायग्राम के थ्रू भी तो इन्फॉर्मेशन से देगा ही ना. हमें तो इन्फॉर्मेशन देने से मतलब होता है. देखना मैं कैसे करूंगा, 10 मिनट में सारे हो जाएगा. मतलब क्लास लंबा रहेगा, जब एग्जाम में लिखा 10 मिनट में हो जाएगा. तो एक भी पॉइंट मिस नहीं हो. सिर्फ नोट्स देने से थोड़ी ना मतलब होता है. नोट्स काम कभी तो हो. अगर मैं 50 पेज का दे दूं, एक बुक है कार्प, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, इसकी याद होगा. सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन और कुछ नहीं उसमें. नहीं, अलग अलग डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स होती है उसका भी तो स्ट्रक्चर देता है ना. वो भी तो डीएनए रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है ना. कार्प की बुक बेस्ट बुक ऑन डीएनए रेप्लिकेशन, इतनी मोटी सी, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन. क्या सोचता है? तो हम अगर इस कार्प को लिखेंगे तो 10 दिन लग जाएगा. डीएनए रेप्लिकेशन से पहले डीएनए की स्ट्रक्चर कर लेते, क्योंकि अगर डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं पता है तो रेप्लिकेशन क्या करें? उसी का ही तो बनाना है. बताओ व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले डीएनए की स्ट्रक्चर जरूर करना चाहिए. और डीएनए की स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री में कराया था.
वो तो बी डीएनए की बोल रहे हैं। ऐसे भी तो जेड डीएनए भी तो हो सकता है, उसमें 10 एक्शन थोड़ी है, उसमें 34 एक्शन थोड़ी है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जो डीएनए है, इट्स ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर in which two polynucleotide chains are helically coiling against each other in an anti-parallel manner, which is stabilized by hydrogen bond. ऐसे तो अगर स्ट्रक्चर देखना है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किससे बनता है वो देखना चाहिए। क्या है बताओ, व्हाट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड और चेन? अमीनो एसिड्स कहां से लेकर आ गया डीएनए की स्ट्रक्चर में? डीएनए की स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स क्यों आएगा? आई एम आस्किंग ऑफ व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, जो तुम जानते हो दैट इज गुड, मेरा जो क्वेश्चन है वो बताओ। व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, यही तो क्वेश्चन है मेरा। कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा? Simply, it's a polymer of nucleotides which are linked with each other by phosphodiester bond. ये बोलेगा ना, तो उसकी कंपोनेंट्स क्यों पूछ रहा है, बोल रहा है अपने को? तो क्या है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बताना? It is nucleoside plus phosphate group, है ना? हम लोग तोड़ रहे हैं टू अंडरस्टैंड द डीएनए स्ट्रक्चर। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, ऐसे जाओ, बन जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसे तो जा रहे हो ना, तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे? यहां से शुरू करेंगे। ये लेनिंजर की नाम सुना? यही है। तो देखो न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। जो शुगर जो है दैट इज ए पेंटोस शुगर, मीन्स 5 कार्बन शुगर। हियर इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। एट पोजिशन 2 1 ऑक्सीजन इज मिसिंग यहां पे, दैट इज इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। इन केस ऑफ आरएनए राइबोस शुगर इज इन्वॉल्व, तो वहां पे क्या होगा? यहां पे वही होगा। यही अंतर है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर। ठीक है। एंड नाइट्रोजनस बेस जो है, देयर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन एंड pyrimidine. Purine includes adenine and guanine, whereas pyrimidine includes cytosine and thymine. In purine, there are 2 rings, 2-ring structure. Pyrimidine जो है single ring structure. Is a heteromeric ring, means in the same ring different types of molecules are formed, carbon, nitrogen. Double ring structure or single ring structure. So when they are bound with each other, तब जाके बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो कैसे बनता है? ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, इट इज कॉल्ड एडिनोसिन। And this bond is called beta galactosidic bond.
आप लोग अलग से बनाना, नहीं तो दिक्कत नहीं। पहले हम लोग शुगर दिखाया, नाइट्रोजन बेस दिखाया, फिर न्यूक्लियोसाइड दिख रहा। तो एडेनिन binds with sugar, and this binding takes place between first position of sugar and ninth position of nitrogenous base. In case of pyrimidine, binding takes place between first position of sugar and first position of nitrogenous base. बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड, वो जो दोनों बाइंड कर रहे बॉन्ड के थ्रू होगा ना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड। फिर बना रहे नेक्स्ट पर एक लाइन में बनाने की कोशिश करना। एक कैसे कोई बात, ये माइनस है क्योंकि फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, 5 देके 2 माइनस कर दो। अब ऐसा कर सकता है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देना एडेनिन गुआनिन, लिख के काम चला सकता है। बहुत बार करते हैं ना। एक बार दिखाना चाहिए, वो शुरुआत में जो दिखाया था ना न्यूक्लियोसाइड, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड में लिख के कर सकते हैं। एक बार तो दिखाई दे, बार बार क्या दिखाई दे, कोई मार्क्स कम नहीं होगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, तो जब भी कभी नोटिस किया, हमेशा डीएनए से जब डीएनए बनता है, डीएनए से सब आरएनए बनता है, व्हाई इट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3 prime because of this. When new chain is synthesized, they should always be from 5 to 3 क्योंकि 5 prime end is blocked with phosphate group, 3 prime ends free. It binds with next nucleotide again with 5 prime, तो फ्री कौन जा रहा है 3 prime, तो डायरेक्शन क्या होगा 5 to 3 होगा। और टेम्पलेट स्टैंड इज ऑलवेज फ्रॉम 3 to 5 बिकॉज ऑफ दिस। तो ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब इफ टू चेन्स इन एन एंटी पैरेलल मैनर कॉइलिंग अगेंस्ट ईच अदर, दैट बिकम्स हाइड्रोजन डीएनए स्ट्रक्चर। तो हम लोग 2 चेन को कॉइल कराएंगे, हो गया। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज इट्स यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। Wherever DNA is present, it may be virus, bacteria, fungi, plants, animals, same structure is formed. कहीं पे भी, there is no exception. एक टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम होता ना, इसे क्या बोल रहा हूँ, ये 34 होता ना, इसके बीच में 10 एंगस्ट्रॉम होता है। एक क्रीक अभी जिंदा है। ये हम लोग के कॉलेज में आया था। एक्चुअली हमारे यहाँ एक टीचर था 𝗬𝗵𝗂𝗯𝗲 मुखर्जी, उनके क्लासमेट था। तो हमारे कॉलेज में जब 175th एनिवर्सरी हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज, तब वो आए, उसको बुलाया गया था। 53 अभी तो बुढ़ा हो गया। वो आया था 2000 के आसपास आया, 23 साल तो काफी होता। न्यूज में सुना नहीं, पता नहीं। तो उन्होंने हमारे 𝗬𝗵𝗂𝗯𝗲 जो डोजेस कॉम्पेंसेशन सुना है, डोजेस कॉम्पेंसेशन नहीं सुना। वाई वन ऑफ द 2X chromosomes in human female is heterochromatic और बार बॉडी थ्रू आउट द लाइफ, उसी को तो डोजेस कॉम्पेंसेशन बोलता है। समझा ना। दैट हैज बीन ये डिस्कवर्ड बाय 𝗬𝗵𝗂𝗯𝗲।
तो किताब जब पढ़ेगा उसकी रेफरेंस होता है। व्हेन ही वाज डूइंग रिसर्च इन जर्मन लेबोरेटरी, फ्यू वुमेन में एक एक्स क्रोमोसोम हमेशा बॉडी रहती। हाँ, क्योंकि मेल में एक एक्स होता है और फीमेल में दो एक्स है। इफ बोथ द एक्स एंड देयर जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, तो डबल द अमाउंट ऑफ मेल हो जाएगा फीमेल। मेल 5 फीट तो फीमेल 10 फीट हो गई, तो एनोमली हो जाएगा ना। इसीलिए 1 एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड, समझा। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ एनिमल्स में both eggs are active, there is no bar body, but in case of male XY में eggs double the amount of work is done। eggs का जो काम है, जो 2 eggs करते हो अकेला eggs कर दो, इसलिए बड़ा हो जाए। This phenomenon is called dosage compensation, and that has been discovered by 𝗬𝗵 मुखर्जी, उसके क्लासमेट थे जर्मनी में। तो ये बोल रहा था कि जो ये मॉडल है, कोई देखा थोड़ी ना देख सकता है। एक तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल ही नहीं दिखता है, न्यूक्लियस कहाँ दिखा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। एक मॉडल दिया होता, ये मॉडल वो लोग रात को वाटसन क्रिक दारू पी रहे, कोई देख ही नहीं सकता ना। तो उस हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि उसी से तो काम चल रहा है ना। इतने बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, इसी मॉडल पे काम चल रहा है। अगर मॉडल गलत हो तो कैसे होता, होगा ही नहीं। अब 75 साल बाद थोड़ी होगा। मेंडल का थ्योरी गलत नहीं है, मेंडल की थ्योरी ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा निकल गया। हाँ, बहुत सारे प्रूफ दिया था, मॉडल देने से थोड़ी ना होगा। तो रात को लोग पीते पीते मॉडल दिया था, वो खुद बोला इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंजॉयमेंट एट बार। फिर पूछी, पता नहीं, वो देखो वो जो बोला था, कोई अपना को चोट तो कहेगा नहीं। ऐसा है, चुराने नहीं होती है। इससे पहले भी काफी सारे मॉडल्स लोग दिया था, तो सब लोगों की मॉडल से वो इकट्ठा करके अपने एक मॉडल दे दिया। गिव एंड टेक बोल सकता है। तो जो क्रिटिक है बोलते चोरी कर दिया। फिर नेक्स्ट दिन ही उन्होंने नेक्स्ट 1-2 दिन में साइंस जर्नल में उसको पब्लिश करता है, तो बहुत एक्सेप्टेंस मिली है। और विद इन ए ईयर इट इज प्रूवन दैट दिस इज द मॉडल। दे आर द फर्स्टेस्ट नोबेल लॉरेट इन द 53 में मॉडल दिया था, 54 में नोबेल मिल गया। यूजुअली नोबेल 25-30 साल बाद मिलता है। हाँ, इस मॉडल के हिसाब से सब कुछ जो भी करेंगे हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, सब इसी मॉडल से होगा, इसी मॉडल से होगा। तो एक साल में इतनी एक्सेप्टेंस मिली है, जो 1954 में नोबेल मिल गई। जो ग्लोबल एंड साबातनी की जो सिग्नल हाइपोथेसिस, वो 1970 में किया था, उनको नोबेल मिली 2003 में। 30 साल, यूजुअली 25-30 साल लगता है। हमारे अमर्त्य सेन जो है, वो भी 25-30 साल पहले काम किया था सब सहारन अफ्रीका में, और इंडिया पर 30 साल के बाद उसको मिला। तो फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन ऑल फील्ड, सिर्फ साइंस में नहीं, सब फील्ड में फर्स्ट।